Good morning, student. I am Mr. Dilip Kumar Verma, your chemistry teacher. Today, we will discuss on next topic in this video, that related formulation, some basic concept of chemistry. Today's our topic is classification of matter. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. We will start to the classification of matter. At a macroscopic level, matter can be classified into two large categories. मैक्रोस्कोपिक लेवल के बेस पर मैटर को दो लार्ज कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वन इज प्योर सबस्टेंसेस एंड सेकेंड इज impure substances or mixtures. Pure substances are again classified into elements and compounds, whereas impure substances or mixture can be classified into two categories: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. वन इज प्योर सबस्टेंस एंड सेकेंड इज इम्प्योर सबस्टेंस. प्योर सबस्टेंस में हम लोग स्टडी करेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक प्योर सबस्टेंसेस. प्योर सबस्टेंस है क्या? ऑल दोज मैटर which has fixed composition. इस नेचर में जो भी सबस्टेंस प्रेजेंट है, अगर इस नेचर में प्रेजेंट सभी सबस्टेंस की कंपोजिशन सेम हो, फिक्स्ड हो, तो प्योर सबस्टेंस हो सकते हैं. दैट इज they are made up of one type of matter. Pure substance जो होंगे वे one type of molecule से, one type of matter से बने होंगे. Pure substance can be further classified into two categories: element and compound. Now we will discuss on next topic element. Element है क्या? तो an element is made up of similar type of atom. जो भी एलिमेंट होगा वह एक प्रकार के जो एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा. एज एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट is made by combination of two similar type of hydrogen atom, जैसा कि आप देख रहे हो. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेसन पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था, देखा था पीरियोडिक टेबल में. इन विच मैक्सिमम एलिमेंट्स आर मेटल. दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स अगेन डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: metals, metalites and non-metals. Maximum elements are metal, some are not metals, and very few elements are metalite, who has both character of metal as well as non-metal. इसको हम फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिया हुआ है. जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट्स के लिए जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, सच दैट.
सेकेंड आप कंडीशन में दे सकते हैं कि वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल is made by combination of two hydrogen atom which has similar properties such as oxygen molecule are also made by combination of two oxygen atom. तो oxygen molecule and hydrogen molecule are elements which are formed by similar type of atom. Now we will discuss on next topic compound. Compound क्या है? When two or more atoms of different elements are combined together, अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हों, एक डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहे हों, देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म. तो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से. हियर वाटर मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड. वाटर के लिए जो फार्मूला यूज किया गया वो क्या है? H2O. H2O is formed by combination of two atom of hydrogen and one atom of oxygen. Means combination of hydrogen and oxygen is fixed in formation of H2O molecule. Hence, water is a molecule. Water is a compound. Now, carbon dioxide molecule is a compound. This carbon dioxide is made by combination of one atom of carbon and two atom of oxygen in definite ratio. So carbon dioxide will be also represent to the compound. Now we will discuss on next topic mixture. Mixture है क्या? A mixture contain two or more substance in any proportion. मिक्सचर को हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे आपने आयरन की फिलिंग लिया हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मिक्सचर के लेसन में. सेकेंड लेसन में आपने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. आयरन फिलिंग को अगर हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो आयरन फिलिंग इज वन कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सैंड. अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग वो आपको अलग अलग आयरन फिलिंग और सैंड जो अलग अलग दिखाई देती है. बट दिस विल बी रिप्रेजेंट टू द मिक्सचर. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है? मिक्सचर की डिफिनेशन क्या हो सकती है कि मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन. जो कॉम्बिनेशन की रेशियो है इन केस ऑफ मिक्सचर वो फिक्स्ड नहीं होगा. तो देर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर. वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर के केस में क्या होगा? तो इन ए होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट मिक्स विथ ईच अदर completely and its composition is uniform throughout. मतलब वन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में टोटली मिक्स हो जाएगा और इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगा. दैट इज वन की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा जबकि नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. शुगर को अगर वाटर में ऐड किया जाए, डिजॉल्व किया जाए, तो आप देखते हैं कि शुगर आपको इनविजिबल हो जाता है. दैट इज शुगर सोल्यूशन एक यूनिफॉर्म कंडीशन को शो करता है. सच एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. कभी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर के केस में वन कंपोनेंट नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ मिक्स नहीं होगा
एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ऑब्जर्व क्लियरली, और जो दो कंपोनेंट्स हम लेंगे वो क्लियरली ऑब्जर्व होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बात कर दी है, सैंड को अगर आप आयरन फिलिंग के साथ मिक्स करते हैं तो सैंड और आयरन फिलिंग आपको सेपरेटली विजुअल होगा। इसी तरह से आप ग्रेन और स्टोन के मिक्सचर को अगर देखा जाए तो ग्रेन और स्टोन सेपरेटली आपको विजुअल होगा, और ग्रेन को आप सेपरेट स्टोन से सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स विथ स्टोन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सैंड विथ आयरन फिलिंग इज आल्सो अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल आपको और भी हो सकते हैं, रिलेटेड एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।